Okay, so as you can see in the board, we will now practice identification of some compounds. This is important to do. So let us try to identify. You do with me, if possible, do before me. Okay. You can even pause the video and do for all of them and match. Okay, so this is 1, 2, 3, 4, 5. I can see all single bonds, and hence it will be pentane. Meth, eth, prop, but, pent, pentane. This is, everybody knows this is methane. Okay, now what is this? Meth, eth, prop, but there is a double bond. So this is propene. Okay, meth, eth, prop, but, there is a double bond. So butene. If there would be two double bonds in the chain, then I would have named it butyne. Anyway, now this is, previously also I said, don't get confused, this is not a branch chain. This is a straight chain only. I could have very easily written it like this. Okay, so this can also be written, this is just to confuse you. So 1, 2, 3, 4 carbons and double bond in the carbon. So it will be again butene. But the position of the double bond is different. I will talk about this positions later on. Meth, eth, ethene. Sorry, it will always start with a capital letter. Yes, ethene. Okay, we will do this one later on. Number 7. Meth, eth, prop, but. Then butane. Why? All single bonds are there. Now, is this a branch chain? No, because why this is not a branch chain? Because this is the last carbons that are written like this. They could have easily be written in this way. They could be easily written in this way. So anyway, meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, heptane. Meth, eth, prop, but, pent. Triple bond is there. So it will be pentyne. Meth, eth, a chlorine is there. I have written it open formula. However, the condensed formula of it will be CH3, CH2Cl. So meth, eth, so it will be chloroethane. Chloroethane. Then meth, eth, prop, but, pent. Iodine is there, so it is iodopentane. Okay, this is 19 number. I'll come to this later on. Let's after 11. Let's go to the 12. Meth, eth, OH group is there, so it is ethanol. Meth, eth, prop, OH group is there, so propanol. Meth, eth, prop, but, COOH is there. You can notice. So butanoic acid. Meth, eth, prop, but what is the functional group? I can see here C double bond H. So if this is the functional group part, remember this is not ketone. यहाँ पे C होना पड़ेगा कीटोन होने के लिए. तो ये H है, तो इसको मैं अगर मैं कॉन्डेंस लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा ना CH3 CH2, इस साइड में ऐसे CHO. तो meth, eth, prop, CHO ग्रुप है, प्रोपानेल होना चाहिए. तो इसका नाम है प्रोपानेल क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड. सो प्रोपानेल. meth, eth, ethanol. Meth, COOH group is there, so methanoic acid. Meth, eth, prop, but here I can see ketone group, so propanone. This is what? Meth, eth, prop, but, pent. Can you see any functional group here? I sure can see. If you look carefully, here is a CO. This CO is actually this one. C double bond O, like this. It is just written in condensed form. So actually
whenever you see like this, it is written CO, so it is actually C double bond O and it is bonded like this. So it will be what? Ketone, meth, eth, prop, but, pent, pentanone. And what is this? Meth. What is the group? This is the functional group, CHO. So it is methanal. It is also known as formaldehyde. So this is it. So these are some identifications. I hope you understood. Okay, so the most important, interesting part, nomenclature of organic compounds. Rather, I should say IUPAC nomenclature. What is the full form of IUPAC? International Unit of Pure and Applied Chemistry. International Unit of Pure and Applied Chemistry. IUPAC nomenclature. So to begin with the IUPAC nomenclature, what you should first understand and keep in mind and practice and be expert in is, suppose for example C, H, H, H and H is there. This is what? Methane. So that means if I write it in condensed form, CH4. CH4 is what? Methane. Now just take off CH4, अगर खोल के देखोगे तो ये ऐसा है. Now just take off one H from any position. तब ये होता है bond CH3. एक बॉन्ड खुला हुआ CH3. सोचो ये समझने में आसान नहीं होगा. ये यहाँ से H हटा दिया तो बॉन्ड CH3. ये मीथेन से आया है, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप. ये हो गया मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल. अगर सोचो आपके पास है CHH, इसको आप क्या बोलोगे? इथेन. मतलब CH3 बॉन्डेड टू CH3 इज इथेन. इससे अगर आप एक कार्बन, एक हाइड्रोजन हटा दोगे किसी भी पोजीशन से, सोचो यहां से हटाया तो ये हो जाएगा CH3 CH2, एक बॉन्ड खुला हुआ. या फिर आप यहां से हटाओगे तो ये हो जाएगा बॉन्ड CH2 CH3. एक ही बात है. इधर से देखो, इधर से देखो, एक ही बात है. तो क्योंकि इथेन से एक हाइड्रोजन हटा के आया है तो इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल. तो ये है मिथाइल और ये है इथाइल. याद रखना. इथाइल को कोई कोई ऐसे भी, क्योंकि इथाइल को C2H4 भी लिखा जाता है, C2H6 भी लिखा जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 है. तो बॉन्ड C2H5 लिख देने से भी वो इथाइल ही है. देखो C2H5, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, बॉन्ड C2H5. C2H6 की जगह में बॉन्ड C2H5, इसको बोला जाता है इथाइल ग्रुप. इथाइल. अगर आपके पास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मिथाइल एंड इथाइल. Rewind and try to understand it in a much more better way. Listen on and on if you have not understood. देखो CH3 CH2 CH3, यहाँ से मैं अगर एक H हटा दूं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, एक खुला हुआ बॉन्ड. या फिर यहाँ से अगर एक H हटा दूं तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3 और यहाँ से एक बॉन्ड खुल जाएगा. तो ये क्या है? ये है प्रोपाइल. प्रोपाइल प्रोपाइल. सो मीथेन से बनता है मिथाइल, इथेन से बनता है इथाइल. इथाइल का सारे स्ट्रक्चर्स प्लीज गौर से देख लो. ये है इथाइल, ये भी है इथाइल और ये भी है इथाइल. ये है मिथाइल और ये है प्रोपाइल. ये भी है, नीचे वाला भी है प्रोपाइल. मीथेन से आया है तो मिथाइल, इथेन से आया है तो इथाइल, प्रोपेन से आया है तो प्रोपाइल. कैसे आया है? जस्ट एक हाइड्रोजन हटा के, मतलब एक कार्बन से एक बॉन्ड खुला हुआ रहेगा. सो दीज आर एल्काइल ग्रुप्स. यू शुड कीप इन माइंड अबाउट एल्काइल ग्रुप. एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऐसे. चलो अभी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं. रूल नंबर 1.
select the longest carbon chain and that will give you the word root. word root क्या है? आप जो नाम देते हो ना, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसको बोलते हैं वर्ड रूट। ठीक है, जैसे आप बोलते हो मिथ, वर्ड रूट का एग्जांपल क्या है? जैसे एक कार्बन रहने से मिथ बोलते हो, दो कार्बन रहने से इथ बोलते हो, तीन कार्बन रहने से प्रोप बोलते हो, और ऑन एंड ऑन। इसको बोला जाता है वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट कहां से मिलेगा? अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे। कैसे? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सोचो आपके पास ये है CH3 bonded to CH2 bonded to CH2 bonded to CH2, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां से एक नीचे आया, यहां से CH3 इधर गया, और इधर है CH2 CH3। अब ये डेफिनेटली ब्रांच चेन है, क्योंकि ये सीधा दिख रहा है कि इधर से ब्रांचिंग हुआ है। तो इसका नाम कैसे देंगे? चलो नाम देने का ट्राई करते हैं। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे? सोचो यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है इन टोटल। लेकिन अब 7 कार्बन से इसको हेप्टेन, यहाँ पे दिख रहा है कि सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हेप्टेन अगर दे दोगे आप, हेप्टेन अगर दे दोगे तो आपका बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। हेप्टेन नहीं है इसका नाम, ये हेप्टेन नहीं है। इसका नाम क्या है देखते हैं। चलो क्या बोला गया है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कैसे सिलेक्ट करूँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? यहां से अगर स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5, ये एक चेन है। अच्छा, अगर मैं फिर से यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6, ये ज्यादा लंबा चेन है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6। तो यहां से स्टार्ट करके एक हो सकता है 1 2 3 4 5, एक ऐसा चेन हो सकता है कंप्लीट, या फिर 1 2 3 4 5 6, ये एक चेन हो सकता है। यहां से स्टार्ट करने से 1 2 3 4, ये एक चेन हो सकता है, लेकिन ये छोटा है। यहां से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5, ये एक चेन हो सकता है, लेकिन ये सेम ही बात हो गया। 1 2 3 4 5, या 1 2 इस साइड से गिनो या इस साइड से गिनो, एक ही बात है। तो ये भी 5 हो गया। तो मुझे यहां से अगर स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट किया था तो 1 2 3 4, ये तो 4 बहुत ही छोटा चेन है। यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो यहां से स्टार्ट करो या फिर यहां से स्टार्ट करो, ये सबसे लंबा चेन हो रहा है। मतलब जो मैंने ब्लू मार्क किया है वो सबसे लंबा चेन है। देखते हैं चलो क्या होता है इसके बाद। लंबा चेन तो मिल गया। कौन सा लंबा चेन है? ये वाला, ये वाला 1 2 3 4 5 6। अब तुम नंबरिंग करना पड़ेगा तुमको। किस साइड से नंबरिंग करोगे? अगर आप इस साइड से नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5 6, या फिर आप इस साइड से नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। अब तुम एक चीज नोटिस करो, अगर मैं यहां से ब्लैक नंबरिंग को फॉलो करूं तो इसका नाम होगा फोर्थ पोजीशन में। ब्लैक नंबरिंग को फॉलो करने से फोर्थ पोजीशन में फोर्थ कार्बन के साथ इसको नंबर क्यों नहीं दिया? इसको नंबर इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये साइड चेन है, ये अब साइड चेन बन गया है। मैंने जब मेन चेन सिलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन का, जो भी रह गया उसको बोला जाता है साइड चेन। अभी ये साइड चेन है तो साइड चेन को नंबर नहीं करते। समझ में आया होगा आई होप। तो अब अगर आप ब्लैक नंबरिंग को फॉलो करोगे
चलो इसको रेट करता हूँ, तो ब्लैक में कंपाउंड लिखा हुआ है तो इस नंबर को रेट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अगर आप रेट नंबरिंग को फॉलो करोगे तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। 6 कार्बन है, हेक्सेन। और अगर आप ब्लू नंबरिंग को फॉलो करते हो तो इस साइड से 1 2 3 थर्ड पोजीशन में मिथाइल है तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 6 कार्बन है, हेक्सेन। अब कौन सा नंबरिंग करेक्ट है और या कौन सा नेम करेक्ट है? डेफिनेटली ये वाला नेमिंग करेक्ट है। एनी गेसेस व्हाई? Obviously, if you can guess, because the side chain is getting lower number. Lower number means higher preference. Always remember, lower number means higher preference. तो आपको हमेशा साइड चेन के नंबरिंग में जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो हमेशा ऐसे नंबरिंग करना पड़ेगा ताकि साइड चेन को जो नंबर मिले वो लो हाईएस्ट प्रेफरेंस हो या फिर उसमें लोएस्ट नंबर आए। तो 4 मिथाइल हेक्सेन इज अ रॉन्ग नेम, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग नेम एंड दिस इज परफेक्टली करेक्ट नेम। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो मैं ये रेड लाइनिंग को मिटा देता हूं एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव ट्राइड टू से। Please pause the video and jot down. Then we will go into the next naming. Okay. अब देखो और एक कंपाउंड लेता हूं CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पे डबल बॉन्ड आने से यहां से CH2 क्यों बन गया? क्योंकि ये 1 2 और 2 हाइड्रोजन 3 4। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता तो ये क्या हो जाता? CH3 हो जाता है। एनीवे मेरा कंपाउंड ये है अभी। अब एक चीज देखो, यहां पे मैं अगर नंबरिंग करने का कोशिश करूं और इसको सॉरी फर्स्ट इज क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रूल नंबर 1, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एंड दैट विल गिव द वर्ड रूट। चलो वर्ड रूट ढूंढते, पहले वर्ड रूट ढूंढना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये जो लॉन्गेस्ट चेन है और सॉरी ये जो स्ट्रेट चेन है इसमें 5 है। यहां से अगर 1 2 3 यहां जाऊं, ये तो बहुत ही छोटा चेन है। 1 2 3 यहां, ये भी बहुत ही छोटा चेन है। अच्छा यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 ये भी इक्वल है, ये भी 1 2 3 4 5 ये भी 1 2 3 4 5। अच्छा और अगर यहां से जाऊं 1 2 3 4 तो ये तो छोटा चेन है 1। ये देखो मैं अगर ये चेन को सिलेक्ट करूं यहां से लेके ऐसे तो 1 2 3 4 इस चेन में सिर्फ 4 ही कार्बन है। तो इससे लंबा चेन तो आपको मिला है, आई होप 5 कार्बन वाला दो मिला है, एक इधर से स्टार्ट करके एक इधर से स्टार्ट करके। लेकिन अच्छा इस साइड से अगर 1 पहले देखो दिमाग में ये घुसाना पड़ेगा कि कितने पॉसिबल चेन्स है। सब पॉसिबल चेन्स पहले देख लो। 1 2 3 4 5 ये एक नंबर, 1 2 3 4 5 ये 2 नंबर, 1 2 3 4 ये 3 नंबर, इस साइड से हो गया। 1 2 3 4 5 ये 1 2 3 4 5 ये जो है 1 2 3 4 5 ये सेम ही है। अब 1 2 3 4 ये एक है 1 2 3 4। अब अगर आप 1 2 3 4 ये लोगे तो ये तो छोटा है, तो
तो इनमें से मैं किसको सिलेक्ट करूं? मुझे सिलेक्ट करना है इसको 1 2 3 4। क्यों सर? ये तो छोटा चेन है, फिर आप इसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? क्योंकि रूल है, अगर आपके चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है प्रेजेंट, तो आपका जितना भी वो चेन छोटा हो, आपको वो लेना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। आपके मेन वर्ड रूट के चेन में उसको इंक्लूड जरूर और जरूर और जरूर करना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 ऐसे आपको इसी चेन को, ये ब्लू मार्क चेन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं सर ये लंबा चेन छोड़ के आपने क्यों इसको सिलेक्ट किया? मैंने ये लंबा चेन छोड़ के इसको इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब चलो नंबरिंग का बारी। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हिच चेन टू सिलेक्ट। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल सही है, लेकिन अगर आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप, सोचो OH, सोचो COH, सोचो कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको उस चेन को सिलेक्ट करना जरूर पड़ेगा, आप नहीं एस्केप कर सकते उससे। तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपको अगर आपको नंबरिंग करना है तो आपको नंबरिंग ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4, या फिर ऐसे 1 2 3 4। कौन सा वाला करेक्ट है, रेड वाला या ब्लू वाला? यहां पे रेड वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने चेन सिलेक्ट किया है, जिस छोटा चेन होने से भी वही चेन सिलेक्ट किया जिसमें डबल बॉन्ड है, उसी तरह जिस कार्बन में अगर मैं इस ब्लू वाले को फॉलो करूं तो पहले वो वाला कार्बन 3 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, और अगर मैं रेड वाला फॉलो करूं तो 1 नंबर कार्बन से ही डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल रहा है। ये तुम्हारा पहला प्रायोरिटी है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना। मतलब मेरा नेक्स्ट रूल है, even if the chain is not longest, still select the chain which contains double bond or triple bond or OH group or Cl group or halogen group or COH group or CHO group और C डबल बॉन्ड O ग्रुप, एनी ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप है आपको उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको पॉज करके इस रूल को लिखो, सब रूल को लिखो, पहले भी लिखा है। ये है पहला रूल, सॉरी ये है तीसरा रूल है। और दूसरा क्या सीखा अभी, नंबरिंग ऑफ चेन शुड बी डन in such a way that double bond or triple bond or functional group gets the highest preference। highest preference मतलब lowest number। तो इसका मतलब ब्लू वाला गलत था, 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये ब्लू वाला गलत है और रेड वाला करेक्ट है। अभी मैंने डिस्कस किया है इस बात को। तो इसका नाम क्या हो रहा है, देखो इसका नाम हो रहा है टू इथाइल। क्यों 2 इथाइल? क्योंकि सेकंड पोजीशन में इथाइल है। 3 मिथाइल। क्यों 3 मिथाइल? क्योंकि थर्ड पोजीशन में देखो मिथाइल लगा हुआ है। मीथ ईथ प्रोब्यूट, 4 कार्बन है। ब्यूट 1 इन। सर ये बीच में 1 डाल के इन क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने से हम लोग इन बोलते हैं। तो इस वजह से इसका नाम है 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब तुम्हारे दिमाग में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसको आपने ऐसे नाम क्यों नहीं दिया?
3 मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटवानिन, ये भी तो हो सकता था। आपने पहले 2 इथाइल उसके बाद 3 मिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि देखो इथाइल स्टार्ट होता है ई से, मिथाइल स्टार्ट होता है एम से, तो अल्फाबेटिकली कौन आगे आता है? ई। इसीलिए मैंने 2 इथाइल 3 मिथाइल नाम दिया है और 3 मिथाइल 2 इथाइल नहीं दिया है। तो इसका मतलब है ये भी और एक रूल बन गया मेरा। तो इसका मतलब है मेरा और एक रूल जो आपको जॉट डाउन करना चाहिए वो क्या है? वो है कि आपको क्या करना चाहिए? when the side chains सॉरी, मुझे एक बात बताओ, ये अगर वर्ड रूट है जो बाद में लिखा जाता है उसको बोला जाता है सफिक्स, जो पहले लिखा जाता है उसको बोला जाता है प्रीफिक्स। यानी पहले होता है सफिक्स नेम में हमेशा, सॉरी पहले होता है प्रीफिक्स, उसके बाद होता है वर्ड रूट और उसके बाद होता है सफिक्स हमेशा। जैसे यहाँ पे 2 मिथाइल 3 मिथाइल, दिस इज ग्रुप ऑफ प्रीफिक्स, ब्यूट दिस इज वर्ड रूट जो चेन से आया है, और सफिक्स क्या है? इन। सफिक्स का भी नंबरिंग होता है, प्रीफिक्स का भी नंबरिंग होता है, सिर्फ वर्ड रूट का नंबरिंग नहीं होता है, हमेशा याद रखो। सफिक्स का भी नंबरिंग होता है, प्रीफिक्स का भी नंबरिंग होता है। तो यहाँ पे रूल मैंने क्या सीखा अभी कि when the prefixes are written, they are written in alphabetical order। तो ये हो गया तुम्हारा और एक रूल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसी रूल के वजह से मैंने 2 इथाइल 3 मिथाइल लिखा है, 2 ई से इथाइल 3 एम से मिथाइल, तो 3 मिथाइल 2 इथाइल ये नाम गलत होगा क्योंकि ये रूल नहीं फॉलो कर रहा है, बाकी सब ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू। वीडियो को पॉज करो और सब लिख डालो, पहले भी वही करो। नोमेनक्लेचर पूरा पॉज करके अच्छे से लिखो, समझ के, और हम लोग प्रैक्टिस करके इसको मास्टर कर लेंगे। अच्छा, तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक कंपाउंड का नेमिंग प्रैक्टिस करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट वी हैव लर्न्ड। और एक कंपाउंड का नेमिंग प्रैक्टिस करते हैं। देखो CH3 CH2 सॉरी CH2 CH3 और यहां से है एक CH3 और इसको दोबारा लिखता हूं मैं CH3 CH CH2 CH3 CH3। अब मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 एक ही बात हो रहा है, यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4, तो मैं स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट करता हूँ, इजी करता हूँ। इसका नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो या फिर 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हो। कौन सा करेक्ट है चलो बताओ। सो आई नो दैट यू नो दैट दिस वन इज द करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन में मिथाइल आ रहा है, यहां से नेम करने से थर्ड पोजीशन में मिथाइल आ रहा है, तो ये इसका मतलब इसका कंपाउंड का नाम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों? ये वर्ड, ये हो गया आपका प्रीफिक्स, ये हो गया वर्ड रूट, ये हो गया आपका सफिक्स। तो ये तो रॉन्ग है, इसको नेम करने में कोई जरूरत ही नहीं है। एनीवे, सो
इसको भी पॉज करके जॉट डाउन करो। अच्छा, तो उसके बाद और एक नेमिंग प्रैक्टिस करते हैं। CH3 C CH2 CH CH3 और यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे आया CH3 और यहाँ पे एक आएगा CH3। डेफिनेटली ब्रांच कंपाउंड है। चलो नेमिंग करने का कोशिश करते हैं। तो अगर मैं देखूं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ से स्टार्ट करो तो भी सेम बात है, तो वह इसी में स्टिक करते हैं। इस साइड से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बहुत सारा है। तो मैं अगर 5 ही हाईएस्ट है तो मैं स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट करूंगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारा इक्वल चेन्स मौजूद है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5, तो मैं ऐसे सिचुएशन में जनरली सिंपली स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हालांकि और एक रूल है, क्योंकि मैं अगर वो रूल यहाँ पे बताऊँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे देखना पड़ता है। अगर इक्वल चेन्स मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप लोग सुनो। अगर इक्वल चेन्स पॉसिबल है, मतलब अगर 2 और 3 इक्वल चेन्स है, वही लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट चेन 2 और 3 टू है, तो हम लोग को हमेशा वो चेन सिलेक्ट करना होता है जिसमें हाईएस्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है। ये बात मैं इसी के बाद ही डिस्कस करूंगा, लेकिन जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक डिस्कस करूंगा, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको इग्नोर करो, उस वीडियो के उस पॉइंट को, उस स्पैन ऑफ टाइम को। लेकिन पहले ये समझ लो, पहली चीज पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो इसका अगर मैं नाम देने जाऊं, अगर मैं इसका नंबरिंग सही भी करूं और मैं अगर नाम देने जाऊं, तो एक नंबरिंग होता है इस साइड से 1 2 3 4 5, और दूसरा अगर मैं रेड यूज करूं तो 1 2 3 4 5। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसको फॉलो करूं ब्लू वाले को, तो नाम होता है अगर मैं ब्लू वाले को फॉलो करूं तो इसका नाम होता है 2 2। सेकेंड पोजीशन में 2 बार मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन में 1 बार मिथाइल है, तो 2 2 4 है, 2 2 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन मीथ ईट प्रो ब्यूट पेंट। और अगर मैं रेड वाले नेमिंग को फॉलो करूं तो नाम होता है 2 4 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। देखो गौर से देखो, मैं अच्छे से दिखाता हूं। इस साइड से ब्लू नंबरिंग 1 2 3 4 5, इस साइड से रेड नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो अगर आप ब्लू वाले को फॉलो कर रहे हो तो रेड वाले को इग्नोर करो। तो सेकेंड पोजीशन में 2 बार है तो 2 2, फोर्थ पोजीशन में 1 बार है तो वो भी मिथाइल ही है, तीनों मिथाइल है, तो 2 2 4 एक बार ट्राइमिथाइल पेंटेन। और अगर आप इस नंबरिंग को फॉलो करोगे तो 2 में 1 बार है, 4 में 2 बार है, तो 2 4 ट्राइमिथाइल। तो कौन सा सही है अभी, ये ढूंढने के लिए हमेशा इसको करो। अगर ऐसा सिचुएशन में आ जाओ तो क्या करो, 2 + 2 + 4 कितना होता है
8, लेकिन 2 + 4 + 4 कितना होता है 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं समेशन करूं तो ये होता है, ये मेरा ऐसा नेम है जिसमें लोएस्ट सम रूल फॉलो हो रहा है, तो यही मेरा करेक्ट नेम है, ये मेरा करेक्ट नेम है, ये मेरा रॉन्ग नेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ द नंबरिंग ऑफ द प्रीफिक्स इज कमिंग 10, इट इज कमिंग 8। दिस टाइप ऑफ रूल जो कम आएगा उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ रूल इज नोन एज द लोएस्ट सम रूल। तो इसको भी जॉट डाउन कर लो, ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ लोएस्ट सम रूल। सो दैट्स इट। पॉज करो, जॉट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग अगर अब नेक्स्ट कंपाउंड में शिफ्ट करें, तो नेक्स्ट वाला कंपाउंड है CH3 CH CH CH2 CH CH3। यहां से अगर आप CH3 डालोगे, यहां से अगर आप CH3 डालोगे और यहां से अगर आप CH3 डालोगे, तो इसका क्या नाम होना चाहिए? दो साइड से नंबरिंग करके, ये दिख ही रहा है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो अगर मैं इस साइड से नंबर करूं, ये अगर लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6, और अगर इस साइड से करूं तो 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो, अगर ब्रेड को फॉलो करूं तो नाम होता है 2,3,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, 2,3,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। और अगर मैं ब्लू नंबरिंग को फॉलो करूं तो नाम होता है 2,4,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, 2,4,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। अब तुम ही बताओ कि कौन सा नाम करेक्ट है और क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आप करेक्ट हो तो मैं बहुत खुश हूं। ये करेक्ट है क्योंकि 2,4,5 ज्यादा आ जाएगा, 2,5 और 5 10, और ये आ जाएगा 2 और 5 7 और 4 11। तो डेफिनेटली रेड नेमिंग इज द करेक्ट वन। ये तो ये हो गया आपका और एक एग्जांपल लोएस्ट सम रूल का। तो इसको भी जॉट डाउन कर लो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेमिंग। कोई आइडिया नहीं था ना नेमिंग ऐसे होता है? आई बेट कोई आइडिया नहीं था नेमिंग ऐसे होता है। आप लोगों ने देखा भी नहीं, स्कूल में बोला भी नहीं, और सोच रहे थे कि कार्बोनस कंपाउंड सीख गए। एनीवे, चलो और एक नेमिंग करते हैं। CH3 bonded to CH3 bonded to CH bonded to CH double bonded to CH2। तो यहां पे अगर मैं इधर से 1 2 3 4 दूं, और अगर मैं इधर से 1 2 3 4 दूं, तो कौन सा नंबर करेक्ट है, रेड वाला या ब्लू वाला? अगर मैं रेड वाले को फॉलो करूं तो नाम हो जाएगा मीथ ईथ प्रो ब्यूट ब्यूट। ओह आई एम सो सॉरी, यहाँ पे और एक चीज है मैं देना भूल गया। यहाँ पे एक ऐसे CH3 है, हाँ, तो ये आपका हो गया 3 कार्बन 3rd कार्बन। हाँ, तो अगर मैं रेड वाले नेमिंग को फॉलो करूं तो अकॉर्डिंग टू रेड वाला नेमिंग ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में अकॉर्डिंग टू रेड कार्बन में है। और अगर मैं ब्लू वाला को फॉलो करूं
सॉरी हाँ ब्लू वाला को फॉलो करो तो आपका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूट 2-मिथाइल ब्यूटथीन, क्योंकि आप चेन में आते जाओगे तो थर्ड में आपको 1 2 3 थर्ड में आपको इन मिल रहा है पहली बार, थर्ड कार्बन से पहली बार डबल बॉन्ड मिल रहा है तो 3। तो कौन सा करेक्ट है? डेफिनेटली रेड वाला करेक्ट है। फिर से क्यों? क्योंकि अगर मिथाइल, अगर देखो आप रेड वाले को फॉलो कर रहे हो तो आपने क्या किया है, आपने प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दिया है, मिथाइल को नहीं दिया। और अगर आप ब्लू वाले को फॉलो कर रहे हो तो आपने प्रेफरेंस सेकंड लोअर नंबर मिथाइल को दिया है और हायर नंबर डबल बॉन्ड को दिया है। कभी नहीं। फंक्शनल ग्रुप्स and double bonds always wins in the race of preference। उसको हमेशा कम नंबर देना पड़ेगा, उसको जिताना पड़ेगा। प्रेफरेंस हमेशा फंक्शनल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स में हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा कि मिथाइल अगर साइड चेन है भी तो साइड चेन को कम प्रेफरेंस देके उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नेम रॉन्ग है। सो आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। ओके, यू कैन think about it and you can pause the video and rub it and jot it down. I will rub it. Okay, so that's it. Okay, so next practice, let's practice another one. देखो और अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेरे पास है CH3 bonded to CH bonded to CH2 ट्रिपल बॉन्डेड टू CH और यहाँ से एक CH3 है। ये आई थिंक आपके लिए अभी आसान है। I think you will be able to do it। अगर आप 1 2 3 4 नेम दे रहे हो या फिर आप 1 2 3 4 नेम दे रहे हो तो कौन सा नंबरिंग करेक्ट है? डेफिनेटली ब्लू वाला करेक्ट है, क्योंकि आपने प्रेफरेंस यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को दिया है। तो इसका नाम है 3-मिथाइल ब्यूट 1-ine 3-मिथाइल ब्यूट 1-ine। आइन क्यों? क्योंकि एल्काइन है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं वर्ड रूट, ये है सफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों का नंबरिंग होता है, वर्ड रूट का कभी नंबरिंग नहीं होता है। वर्ड रूट नियतित प्रोड्यूट ऐसा होता है, खुद में नंबरिंग है। एनीवे, सो ये आपका, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिस। यू कैन जॉट इट डाउन अगेन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब है और एक रूल सीखेंगे। अभी तक क्या क्या रूल सीखा? अभी तक देखो, मैं एक बार बोल देता हूँ। अभी तक आप लोगों ने सीखा, अगर आप लोगों ने कॉपी में जॉट डाउन किया है तो अच्छी बात है, उससे मिलाओ क्या मैं बोल रहा हूँ। आपने पहली बार सीखा है कि लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, फिर नेमिंग करना है। आपने उससे पहले तो एल्काइल ग्रुप सीखा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल किसको बोलते हैं। एनीवे, फिर आपने सीखा है कि अगर आपका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपके पास ब्रांच चेन दिया हुआ है, स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांच चेन दिया हुआ है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? आपको हमेशा हमेशा और हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये गया आपका पहला रूल। कॉपी से मिलाओ और जो कंपाउंड है उसको भी देखो। फिर आपका दूसरा रूल क्या है? अगर आपका लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, वो साइड चेन में चला जा रहा है, तो नहीं होगा। आपको हमेशा अपने चेन में, जो लॉन्गेस्ट चेन में जिस चेन से वर्ड रूट सिलेक्ट हो रहा है, उस चेन में अगर वो लॉन्गेस्ट ना भी हो तो भी आपको उसी चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि व्हाट इज द रीजन? रीजन इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को हमेशा चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। ओके, फिर हमने नेक्स्ट रूल क्या सीखा?
आपने नेक्स्ट रूल सीखा है कि हमेशा अगर 2-3 मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है 224, 244 या 235, तो हमेशा ऐसा नेमिंग में क्या करना चाहिए, लोएस्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए, सॉरी लोएस्ट सम को प्रेफरेंस देना चाहिए, ऐड करके जो लोएस्ट आएगा उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। फिर आपने क्या सीखा, फिर आपने सीखा है कि अगर एक चेन में आपके पास साइड चेन भी है यानी मिथाइल इथाइल ये सब है और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आपको हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देना पड़ेगा नंबरिंग में। फिर और एक रूल जो मैं मिस करके आप लोग सीखे हो कि जब आप प्रेफिक्स लिख रहे हो, अगर इथाइल और मिथाइल दोनों प्रेजेंट है तो आपको इथाइल पहले लिखना पड़ेगा, मिथाइल बाद में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल आगे आता है। सोचो ऐसा है 4 इथाइल 2 मिथाइल, तो ये नंबर जो है 4 और 2 ये कुछ मायने नहीं रखता है, आपको अल्फाबेटिकली एम और ई को सजाना है। 4 इथाइल अगर आप बोलोगे कि नहीं सर 2 है तो मैं 2 मिथाइल पहले लिखूंगा 4 इथाइल बाद में लिखूंगा, नहीं होगा। आपको 4 इथाइल आगे लिखना पड़ेगा, 2 मिथाइल बाद में लिखना पड़ेगा क्योंकि ई एम के आगे आता है। तो ये भी एक रूल है जो आपने सीखा है। So these are the rules you are already ready with and you have practiced some. मैंने यहां पे एक बात बताया था कि अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब सोचो 6 कार्बन का 2 चेन है, तो आपको कौन सा चेन सिलेक्ट करना चाहिए। मैंने बताया था ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा वीडियो में, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया कि अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ चीजें मैं क्लास के डिस्कशन के लिए भी छोड़ रहा हूं। वो तुम्हारे क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आएगा भी नहीं, इसीलिए वो चीज को मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट रूल में जाते हैं। सोचो आप जब यूज कर रहे हो एक कंपाउंड, जैसे ये वाला CH3 CH, यहां से एक CH3, यहां से एक C और यहां से लेके यहां पे C2H5। आपको याद होगा C2H5 बॉन्ड होने से इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। C2H6 है इथेन, तो ये इथाइल। एनीवे C2H5, फिर आ गया आपका CH2, फिर आ गया आपका CH3 और शायद यहां से भी एक CH3 है। अब देखो ये कंपाउंड अगर मैं इसको नेमिंग करूं तो इसको मैं 1 2 3 4 5 इस तरफ से नेमिंग कर दिया क्योंकि यही यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है और यही सही वे है नेमिंग करने का। आप बोलोगे कि सर 1 2 3 4 5 क्यों नहीं सिलेक्ट किया। मैंने 1 2 3 4 ये ब्लू वाले को मैं नहीं सिलेक्ट करना चाहता क्योंकि अगर मैं ब्लू वाले को सिलेक्ट करूं तो क्या नाम आता है, और अगर मैं रेड वाले को सिलेक्ट करूं तो क्या नाम आता है, पहले देख लेते हैं। पहले रेड वाला करेक्ट नेमिंग में लिख लेता हूं। रेड वाले को फॉलो करोगे तो ये करेक्ट नेमिंग आएगा, ये हो जाएगा 3 इथाइल 3,4 डाइमिथाइल 3 इथाइल 3,4 सॉरी नॉट 3,4 रेड वाले को फॉलो कर रहा हूं। 3 इथाइल 3,2 डाइमिथाइल पेंटेन। पहले नाम को समझो। 3 इथाइल थर्ड पोजीशन में इथाइल है। 2,3 बोलना चाहिए मुझे, सॉरी 2,3 डाइमिथाइल। अब तुम यहाँ पे मेरे साथ आर्गू कर सकते हो कि सर यहाँ पे तो E है, यहाँ पे तो D है, DE के आगे आता है। नहीं नहीं बेटा, डाई ट्राई ये सब को कंसीडर नहीं करते। डाई ट्राई तो वो
2 या 3 है इसलिए लिखते हैं, मैं m को ही कंसीडर करूंगा, इसीलिए e को आगे लिखा है, m को बाद में लिखा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। फिर ये आपका करेक्ट नेमिंग है। चलो ब्लू को फॉलो करके देखते हैं। ब्लू को फॉलो करने से आपका हो जाएगा फिर से 3-इथाइल हुआ और 3,4 डाइमिथाइल पेंटेन। लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत है, बताऊं क्या? 3 + 3 + 4 कितना होता है? 10। 3 + 2 + 3 कितना होता है? 8। तो ये रेड वाला लोएस्ट सम रूल फॉलो कर रहा है, इसीलिए ब्लू वाले को मैंने सिलेक्ट करना उचित नहीं समझा तब। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नेमिंग वेरी वेल। सो इसको मैं मिटाता हूं, ये इसका नाम है, अच्छे से सोचो और प्रैक्टिस करो। सो ये आपका हो गया। और एक प्रैक्टिस, अभी थोड़ा सा रूल्स वगैरह रेडी है मेरे पास, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ कंपाउंड्स प्रैक्टिस करते हैं। मैं कंपाउंड्स पहले बोर्ड में लिख दूंगा और आप वीडियो पॉज करके इसको करने का कोशिश करना। नंबर 1 CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, यहाँ पे है C2H5 और यहाँ पे है CH3। अच्छा, नंबर 2 CH3 CH2 C2H5, यहीं पे है CH3 CH2 CH CH3 CH3। फिर नंबर 3 CH3 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 CH3। फिर है नंबर 4 CH3 CH CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3। और फिर है नंबर 5। नंबर 5 क्या है? ओके, फिर है नंबर 5। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है CH3 CH2 CH C ट्रिपल बॉन्डेड टू C CH